Assalamualaikum dear students. This is Miss Uruj Javed from the Smart School Sir Syed Ahmed Khan campuses. How are you all? Hope you all are great and doing well. In this video, I will explain you about biology and other sciences and biological method. And the resource which I am using here is a textbook of biology for class 9 and 10. Let's review about previous class. In the previous class, I had explained you about branches of biology. There are 13 branches of biology. Number 1, morphology. Number 2, anatomy. Number 3, histology. Number 4, cytology. Number 5, physiology. Number 6, ecology. Number 7, embryology. Number 8, taxonomy. Number 9, genetics. Number 10, paleontology. Number 11, biochemistry. Number 12, microbiology. And number 13, biotechnology. In morphology, we are dealing with the study of external structure characteristics of plants and animals. In anatomy, we are dealing with the internal structures of all organs of an organism. In histology, we are dealing with the studies of tissues of animals and plant under microscope. In cytology, we are dealing with the study of structure, function and composition of cell. That's why it is also called cell biology. In physiology, we are dealing with the functions of different parts of living organism. In ecology, we are dealing with the study of relationship of living organism with each other and their non-living environment. In embryology, we are dealing with the study of progressive developmental changes which occur after zygote formation up to an organism is formed. In taxonomy, we are dealing with the description, identification, classification and scientific naming of living organism. In genetics, we are dealing with the study of inheritance. In paleontology, we are dealing with the study of animals and plants that lived in remote past and now found as fossils. In biochemistry, we are dealing with the link between biology and chemistry. In microbiology, we are dealing with the study of microorganism. And in biotechnology, we are dealing with the technologies which were developed for the welfare of mankind. Now come to the today's topic. Biology and other sciences. Biology is a multi-dimensional science. It is linked with the knowledge of chemistry, physics, mathematics, sociology and statistics. And these branches which are related to biology are biochemistry, biophysics, biometry. बायोलॉजी एक मल्टी डायमेंशनल साइंस है. बेसिकली बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंस की ब्रांचेस के साथ भी लिंक है, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, सोशोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स. अगर आप बायोलॉजी को लिंक करते हो केमिस्ट्री के साथ, दैट इट बिकम अ बायोकेमिस्ट्री. सिमिलरली बायोलॉजी एंड फिजिक्स आर बिकम बायोफिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथ्स आर बायोमेट्री. नाउ लेट्स डिस्कस सम ऑफ दीज इन डिटेल. Biophysics. Branch of physics where we apply laws and techniques of physics to explain the metabolism of living organism to find out the age of fossils. One of the sub-branch of biophysics is radiophysics, where radioactive isotopes are used to trace the translocation of different material in vivo, that is within the living organism. बायोफिज़िक्स बेसिकली फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसमें हम बहुत सारे लॉज और टेक्निक्स लगा रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं फ़िज़िक्स के. क्या चीज़ फाइंड आउट करने के लिए? एक तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म एक्सप्लेन करने के लिए और इसके अलावा फॉसिल की एज फाइंड आउट करने के लिए. एक सब ब्रांच बायोफिज़िक्स की रेडियो फिज़िक्स भी है, जहाँ पर हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को यूज़ कर रहे होते हैं. किस चीज़ को जानने के लिए? डिफरेंट मटीरियल की ट्रांसलोकेशन को वीवो के अंदर. इन वीवो अगर कहीं लिखा हुआ आ रहा है तो इट मीन्स कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं. रेडियो लेबलिंग एंड कार्बन डेटिंग ऑल्सो शोज सम यूजेस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स इन डिटरमाइनिंग द एज ऑफ फॉसिल्स. यूज ऑफ साउंड वेव्स एज अल्ट्रासाउंड एंड लेजर टेक्नोलॉजी शोज सम रिलेशनशिप ऑफ फिजिक्स विद बायोलॉजी.
साउंड वेव्स को एज अ अल्ट्रासाउंड और लेज़र टेक्नोलॉजी में यूज़ करके जो है एक आपके पास एग्जाम्पल मौजूद है कि अगर ये जो यूज़ ऑफ साउंड वेव्स है किसके अंदर, अल्ट्रासाउंड में और लेज़र टेक्नोलॉजी में, ये आपको शो कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन बायोलॉजी एंड फिजिक्स. Biochemistry. A complete branch of chemistry which requires firm knowledge of biology and chemistry to explain the synthesis of biomolecules, their requirement and the effect caused by the deficiency and efficiency of different molecules on the organism and their metabolism. बायोकेमिस्ट्री में आपको पहले भी बता चुकी हूँ. बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी केमिकल्स हो रहे होते हैं, केमिकल्स रिएक्शंस जो हो रहे होते हैं, उनकी स्टडी जो हो रही होती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर हो रही होती है. ठीक है, आपकी बॉडी या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी की बात की जाए तो कुछ केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिनका डिफरेंट फंक्शन होता है. अब अगर कोई केमिकल किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ज़्यादा तादाद में आ जाए, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा आ जाए, या किसी केमिकल की डिफिशिएंसी हो जाए, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को हम स्टडी कर रहे होते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर. बायोमेट्री. It is the branch of mathematics where data and measurement related to living organism are dealt with. Without knowledge of mathematics and statistics, no biological research and data analysis is possible. All biologists conclude their research by using knowledge of statistics and mathematics. बायोमेट्री की अगर बात की जाए तो ये मैथ्स की ब्रांच है, मैथमेटिक्स की ब्रांच है, जहाँ पर डेटा और मेजरमेंट्स की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड. कहा जाता है कि विदाउट द नॉलेज ऑफ मैथ्स नो बायोलॉजिकल रिसर्च इज़ पॉसिबल. क्योंकि जब भी कोई बायोलॉजिस्ट कोई रिसर्च करता है तो वो पहले उसका डेटा एनालिसिस करता है, एक डेटा चार्ट बनाता है, उसके बाद उस पर रिसर्च करता है. अब अगर मैथमेटिक्स की नॉलेज ही नहीं होगी तो डेटा ही नहीं बनेगा, और डेटा नहीं बनेगा तो कैसे रिसर्च पॉसिबल होगी. तो आप जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं बेसिकली वो अपना रिजल्ट जो है वो कंक्लूड क्या किस बेस पर करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथ्स. बिहेवियरल बायोलॉजी, नाम से जाहिर हो रहा है इसमें बिहेवियर की बात आ रही होगी. मैनी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ बायोलॉजी आर रिफ्लेक्टेड विद द स्टडी ऑफ बिहेवियर. इट इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, एवोल्यूशनरी थ्योरी एंड इकोलॉजी. बेसिकली हम इसमें जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर को स्टडी कर रहे होते हैं. बायोसोशियोलॉजी, द स्टडी ऑफ बिहेवियर स्पेशली सोशल बिहेवियर also associates biology to the social sciences and humanities. Through the study of life in general, we will learn more about ourselves. Biosociology means social life के से थोड़ा सा लिंक करता है ये. ठीक है, सोशल बिहेवियर मतलब ये कि एक जैसे आप अपने घर में हो, जब तक आप घर में रहते हो आपके घर का जो माहौल है उस हिसाब वही चीज़ें आपके अंदर भी आती हैं. ठीक है, लेकिन जब आप बाहर निकलते हो, थोड़ा सोशल होते हो, थोड़ा फ्रेंड सर्कल में जाते हो, तो कुछ न्यू चीज़ें भी आप अडेप्ट करते हैं. तो इस तरह की भी जो भी स्टडी है वो आती है, उससे बिहेवियर पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अराउंड. द सोशल बिहेवियर की बात की जा रही है बेसिकली यहाँ पर. इस चीज़ की स्टडी हम कर रहे होते हैं बायोसोशियोलॉजी. I hope it is clear to all of you. If you have any query, you can ask me in the comment section. Now, let's come to the next topic, that is biological method. A biological method is a scientific approach used to resolve a biological problem related to or produced by a living organism. In order to resolve a specific biological problem, a biological method is adopted, which consists of following steps. बेसिकली बायोलॉजिकल मेथड एक साइंटिफिक अप्रोच है जो कि यूज़ की जा रही होती है किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने में, या कोई प्रॉब्लम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा है उसके थ्रू उससे उसको रिजॉल्व करने के लिए. ठीक है, किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिसॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को जो है वो अडॉप्ट किया जाता है, जो कि कंसिस्ट है 6 स्टेप्स के. नंबर 1 ऑब्जर्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस, नंबर 3 डिडक्शन, नंबर 4 एक्सपेरिमेंट, नंबर 5 थ्योरी एंड नंबर 5 रिजल्ट एंड नंबर 6 इज थ्योरी और लॉ. ऑब्जर्वेशन, it is the first step of biological method.
बायोलॉजिकल मेथड का फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन इज द गैदरिंग ऑफ इनिशियल इंफॉर्मेशन अबाउट एन इशू. Like in 1878, Lavran studied the blood sample of malarial patient and observed plasmodium in it. बेसिकली ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन जो है वो पहला स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड का. इसमें जो है इंफॉर्मेशन गैदर की जाती है बाय ऑब्जर्विंग द प्रॉब्लम. यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं मलेरिया केस की. 1878 में एक फ्रेंच फिजिशियन था लैवरन. उसने क्या किया, एक मलेरिया पेशेंट का ब्लड जो है वो स्टडी किया अंडर माइक्रोस्कोप. जब उसने उस ब्लड को माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया तो उसके अंदर उसको बहुत छोटे छोटे क्रिएचर्स नज़र आए जिसको उसने प्लाज्मोडियम का नाम दिया. ऑब्जर्वेशन में बी मेड बाय नेकेड आई और विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट. डिपेंड करता है, ऑब्जर्वेशन इंसान अपनी नेकेड आई से भी बना सकता है या किसी इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके भी ऑब्जर्वेशन जो है वो बन सकती है. अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया? यहाँ पे ऑब्जर्व ये किया गया कि मलेरियल पेशेंट के ब्लड में प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है. नाउ कम टू द सेकेंड स्टेप. आफ्टर मेकिंग द ऑब्जर्वेशन, बायोलॉजिस्ट मूव टूवर्ड्स द सेकेंड स्टेप, दैट hypothesis. The first logical statement given by scientists about work under study is called hypothesis. It is fairly reliable and simplified version of fact. It is the possible answer of problem. It may be true or false. After observation, scientists क्या करते हैं या biologists क्या करते हैं, एक statement देते हैं कि may be possible this is the cause of this problem. This is the cause of this problem. जस्ट अ स्टेटमेंट, इसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं. ये प्रॉब्लम का पॉसिबल आंसर भी हो सकता है बट नॉट पॉसिबल. इट इज़ ऑलवेज ट्रू. सम टाइम इट मे बी ट्रू और सम टाइम इट मे बी फॉल्स. फॉर एग्जाम्पल, an observation was made that plasmodium is the cause of malaria. So a question raised, is plasmodium the cause of malaria? जैसे अब आपके पास जो मलेरिया की एग्जाम्पल थी उसमें जो ऑब्जर्व किया गया तो ऑब्जर्वेशन में जो है वो प्लाज्मोडियम पता चला कि ब्लड सैंपल में प्लाज्मोडियम मौजूद था. तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया कि क्या ये जो ब्लड के अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है क्या ये मलेरिया कॉज कर रहा है? बट इट इज़ ओनली अ गैस, अभी कंफर्म नहीं है. जस्ट ऑब्जर्वेशन के बाद एक स्टेटमेंट दी गई है तो आप उसको एज अ हाइपोथेसिस प्रेजेंट कर सकते हैं. लाइक प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया. दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल आइडिया, जस्ट अ स्टेटमेंट. इट मे बी ट्रू और इट मे बी फॉल्स. आफ्टर गिविंग हाइपोथेसिस, scientists move to the next step, that is deduction. It is the logical explanation of the hypothesis. It does not require any type of experimentation. बेसिकली रिडक्शन क्या है? रिडक्शन जो है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है किस चीज़ की? हाइपोथेसिस की. जो हाइपोथेसिस आपने पेश किया उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो चीज़ दी जाती है वो रिडक्शन होती है. इसमें किसी भी तरह का एक्सपेरिमेंट ज़रूरी नहीं होता. अब अगर आप एग्जांपल लें जो आपने हाइपोथेसिस दिया है उसके लिए किस तरह की रिडक्शन बनेगी. If plasmodium is the cause of malaria, then all the patients suffering from malaria should have plasmodium in their blood, while healthy people should not have. अब यहाँ पे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया, बस क्या किया है, हाइपोथेसिस को लॉजिकली एक्सप्लेन किया गया है. क्या बताया गया है कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया कॉज कर रहा है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए और जितने हेल्दी पर्सन्स हैं उनके ब्लड में नहीं होना चाहिए. आफ्टर हाइपोथेसिस, बायोलॉजिस्ट मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज एक्सपेरिमेंट. The next step is to test each deduction practically and find out whether or not the hypothesis is correct. For this purpose, a scientist perform two types of tests, that is control and experimental groups. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है कि जो डिडक्शन दी गई है उसको प्रैक्टिकली टेस्ट किया जाए ये जानने के लिए कि हाइपोथेसिस करेक्ट है या नहीं. इस पर्पस के लिए साइंटिस्ट दो तरह के ग्रुप बनाता है. एक कंट्रोल ग्रुप होता है और एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है. कंट्रोल ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ हेल्दी पीपल एंड एक्सपेरिमेंटल ग्रुप मीन्स अ ग्रुप ऑफ मलेरियल पेशेंट. कंट्रोल ग्रुप मीन्स का मतलब ये है कि उसमें सारे हेल्दी पेशेंट होंगे और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में वो पेशेंट्स होंगे जिनको मलेरिया हुआ है. In order to find out the cause of malaria, scientists examine the blood of about 100 malarial patients and 100 healthy persons.
मलेरिया की कॉज को फाइंड आउट करने के लिए साइंटिस्ट क्या करता है, साइंटिस्ट ने एग्जामिन करा है, क्या किया साइंटिस्ट ने, एग्जाम्पल 100 मलेरियल पेशेंट के ब्लड सैंपल को एग्जामिन किया और 100 हेल्दी पर्सन के ब्लड सैंपल्स को एग्जामिन किया. आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कम टूवर्ड्स द रिजल्ट. Once the experiment finalized, then the result is established which verifies a deduction. ठीक है, जैसे ही एक्सपेरिमेंट फाइनलाइज हो जाता है तो रिजल्ट वो प्रोड्यूस करता है जो कि आपके डिडक्शन को वेरीफाई करता है. फ्रॉम अबव एक्सपेरिमेंट इट वॉज फाउंड दैट ऑल द मलेरियल पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड वेयर इज द ब्लड ऑफ हेल्दी पर्सन्स फॉर फ्री ऑफ प्लाज्मोडियम. सो द रिजल्ट्स वेरीफाइड द डिडक्शन. अब क्या हुआ, जो एग्जाम्पल हम लेके चल रहे थे उसके एक्सपेरिमेंट में जब साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया तो उसका जो रिजल्ट आया वो यही आया कि जितने भी मलेरियल पेशेंट थे उनके ब्लड में सिर्फ प्लाज्मोडियम था, जबकि हेल्दी पर्सन के ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं पाया गया. तो ये क्या कर रहा है, इस रिजल्ट ने डिडक्शन को वेरीफाई कर दिया, डिडक्शन को सच साबित कर दिया. ठीक है, समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर ये रिज़ल्ट नेगेटिव आता, लाइक प्लाज्मोडियम हेल्दी पर्सन से ब्लड में भी होता, तब क्या किया जाता, तब साइंटिस्ट दोबारा से ऑब्जर्वेशन करके एक और हाइपोथेसिस देता, फिर डिडक्शन बनती, फिर एक्सपेरिमेंट होता, अगेन रिजल्ट आता. जब तक आपका हाइपोथेसिस वेरीफाई ना हो जाए तब तक साइंटिस्ट अगेन एंड अगेन ये स्टेप जो है वो रिपीट करता रहता है. वंस योर हाइपोथेसिस इज वेरीफाइड देन इट कम्स टूवर्ड्स द लॉ और थ्योरी. यहाँ पर रिजल्ट में आपका जो डिडक्शन था दैट इज़ प्लाज्मोडियम इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया वो वेरीफाई हो गया. A theory is a set of scientific assumption consisted with one another and supported by evidence but not fully proved. थ्योरी क्या है, थ्योरी में एक थ्योरी सेट है साइंटिफिक अजम्पशन का जिसमें एविडेंस भी मौजूद होता है लेकिन एक तरह से पूरी तरह से वो प्रूव नहीं हुआ होता. जैसे कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की आप एग्जाम्पल ले लें. As more and more evidences come to hand, the hypothesis gain increasing acceptance and eventually promoted to the rank of theory. जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा एविडेंस आते जाते हैं, हाइपोथेसिस जो है वो हाइपोथेसिस को सही साबित करने के लिए जितने ज़्यादा एविडेंस आते जाते हैं, हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करने का रेट जो है वो इंक्रीज़ होता जाता है और वो खुद ब खुद जो है वो थ्योरी बन जाता है. इन दिस वे जो है वो साइंटिस्ट जो है इस तरह से किसी भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. It may takes a lot of time as well. So, I hope you all have cleared today's topic. If you have any problem, any query, you can ask me anytime. I will explain it to you again. So, this is all for today. Till then, take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.